A very good afternoon to everyone. Today's editorial is all about Rajiv Gandhi's assassination. At the same time, we shall try to understand the political condition of that very time when Rajiv Gandhi was assassinated and why this topic is very important nowadays and it is discussed everywhere. And we shall also try to find out the reason for his assassination. Hence, this topic is very important for your examination because it will allow you to peep into the history of that very time. The very first thing that I would like to give you brief introduction of Rajiv Gandhi since this topic is related to Rajiv Gandhi, hence you must know about him. When we talk about Rajiv Gandhi, he was the son of Indira Gandhi and Firoz Gandhi. He was the eldest son of Firoz Gandhi and Indira Gandhi. He was born in the year 1944, and when we talk about date, it was 20 August. 20 August 1944. This is date of birth of Rajiv Gandhi, and his birth anniversary is celebrated as Sadbhavana Divas in India. So you must remember 20 August as Sadbhavana Divas. When we talk about his death, but before we come to that, you must know about his married life, and you know well that he got married to a lady called Antonio Mino of that time, and when she came to India, her name was changed and she turned into Sonia Gandhi. Hence, Sonia Gandhi is the wife of Rajiv Gandhi, and Rajiv Gandhi and Sonia Gandhi had two children, and their names are Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi. Now, come to his assassination. He, Rajiv Gandhi, was the seventh Prime Minister of India when his mother, named Indira Gandhi, was assassinated in 1984. He became the seventh Prime Minister of India. He was the youngest Prime Minister of India so far, and he brought revolution in the area of computer and all science and technology. He is also known for bringing computers in India. And when we talk about his assassination, it was the year 1991 when he was campaigning for an election. And during that very time, there was an organization called LITTE, Liberation Tigers of Tamil Eelam, and terrorists of that very organization targeted him and killed him on 21st May 1991. 21st May 1991. Hence, you must remember 20 August 1944 was date of his birth, and 21st May 1991 he was assassinated. He means he died. 20 August, it means his birth anniversary is celebrated as Sadbhavana Divas, and the place and Samadhi that we call in Hindi, that Samadhi, that place, that tomb is called Bir Bhumi. You must remember it. This was the brief introduction about Rajiv Gandhi. Now you know well that I'll explain this topic, means this editorial in Hindi for you. So let me start with the heading of this very editorial, and it starts with a sense of an ending. A sense of an ending, when we talk about Hindi, it is अंत होने का भाव. A sense of an ending का मतलब होता है अंत होने का भाव. अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऑन द रिलीज ऑफ राजीव गांधी केस कॉन्विक्ट. ये टॉपिक हम लोग को इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि राजीव गांधी की हत्या जो हुई उसमें जो कॉन्विक्ट यानी जो दोषी यानी आरोपी ठहराए गए थे उनको रिलीज करने की बात हो रही है. करीब इस घटना की 22 से अगर देखें तो 30 प्लस यानी 31 32 33 जो भी हो 30 प्लस ईयर्स हो गए हैं, और उसके बाद जो इसके दोषी हैं उनको रिलीज़ करने की बात हो रही है. क्या ये सही है या गलत है, आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है दैट यू विल हैव टू नोट डाउन.
द वेरी फर्स्ट वर्ड यू कैन सी हियर, रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब होता है पश्चाताप, पश्चाताप यानी डीप रेग्रेट फॉर समथिंग। Remorse on part of the convicts should be a prior requirement for premature release। कहा जा रहा है कि सब प्री मैच्योर का मतलब होता है समय से पहले रिलीज कर देना, कॉन्विक्ट मतलब दोषी हो गया, प्रायर का मतलब पहले हो गया। तो इसमें कहा जा रहा है एडिटोरियल के राइटर के द्वारा कि जो कॉन्विक्ट है उसके तरफ से पश्चाताप का भाव इस आधार, एक पहला आधार होना चाहिए, रिक्वायरमेंट होना चाहिए पहले उनको छोड़ने के लिए। यानी कुल मिलाकर के ऐसा बोला जा रहा है कि कन्विक्ट्स को छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन उसका पहला जो रिक्वायरमेंट ये होना चाहिए कि उसको इस बात का पछतावा हो या पश्चाताप हो कि उसने बहुत ही गलत काम किया है। यानी अगर जो दोषी हैं ये अब पश्चाताप जाहिर करते हैं, इस आधार पे उनको छोड़ा जाना चाहिए। अगर उनको इस बात का पश्चाताप नहीं है कि उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है तो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। द रिलीज ऑफ 6 रिमेनिंग कॉन्विक्ट्स इन राजीव गांधी एसोसिनेशन केस। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है कि जो 6 बचे हुए कॉन्विक्ट थे राजीव गांधी के एसोसिनेशन में, हत्या में शामिल जो थे, उनको क्या कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, उनको बरी कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ये जो घटना है मार्क्स द एंड ऑफ ए ट्रेजिक एपिसोड। ये दर्शाता है कि जो एक ट्रेजिक, दिल दहला देने वाली जो घटना घटी थी उसकी अब समाप्ति हो चुकी है, एंड हो गई। डैट बिगेन विथ इंडियाज डिजास्ट्रस इन्वॉल्वमेंट इन श्रीलंकाज इंटरनल स्ट्राइक। और ये जो एपिसोड की शुरुआत हुई थी, ट्रेजिक एपिसोड की, वो हुई थी तब जब भारत का एक विनाशकारी इन्वॉल्वमेंट हुआ था श्रीलंका के इंटरनल संघर्ष के मामले में इन 1980s। 1980 के दशक में भारत श्रीलंका के अंदरूनी संघर्ष में शामिल हुआ था, और इसका जो सबसे बड़ा परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ा, जो कि राजीव गांधी के एसोसिनेशन के रूप में। द एसोसिनेशन इन मे 1991, 1991 के मई महीने में जो एसोसिनेशन हुई थी, हत्या हुई थी, इन ऑर्डर बाय द लिट्टे लीडरशिप। जैसा कि आपको बताया कि लिट्टे के लीडरशिप के द्वारा ये हत्या हुई थी। और एक किसके ऑर्डर पे हुई, तो लिट्टे का फुल फॉर्म अगर हम लोग बात करें तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, ये नाम था उस ऑर्गेनाइजेशन का जिसने ऑर्डर दिया था। और इसको कैरी आउट किया गया, कैरी आउट मतलब उसको लागू किया गया, जो ऑर्डर को पालन किया गया किसके द्वारा, सुसाइड बॉम्बर्स के द्वारा। यानी एक सुसाइड बॉम्बर थी, यानी जो अपने साथ, सुसाइड बम्बर जो उसको बोलते हैं जो अपने आप में बम फिट कर लेता है और उसे उड़ा देता है। काउज्ड रिवल्सन, और ये जो है रिवल्सन पैदा कर दिया, यानी एक तरह की घृणा का भाव पैदा कर दिया। हाउएवर, हालांकि, ओवर टाइम द प्रोलॉन्ग्ड incarceration of 7 persons ultimately found guilty evoked some public sympathy। समय के साथ जो लंबा समय बीत गया उसमें जो लोग शामिल थे, जेल में बंद थे, इनकार्सरेशन का मतलब होता है जो बंद हैं जेल में, तो 7 जो प्रिजन्स थे, पर्सन्स थे, 7 जो लोग थे जो कि बंद थे बहुत लंबे समय से, धीरे धीरे उनके प्रति लोगों की सिंपैथी जागने लगी। Political parties in Tamil Nadu campaigned for the release of 4 convicts on death row and 3 serving life terms। यहाँ तक तमिलनाडु की जो पार्टियां हैं वो भी प्रोटेस्ट करने लगी। कैंपेन का मतलब होता है अभियान चलाना, अभियान चलाने लगी और मांग की कि जो 4 लोगों को जो मौत की सज़ा सुनाई गई है और 3 ऐसे लोग हैं जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, यानी पूरे ज़िंदगी कारावास में रहने की सज़ा मिली है, उनको रिलीज़ करने के लिए तमिलनाडु की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कैंपेन करने लगी। वो क्या करने लगी, प्रचार करने लगी। द सुप्रीम कोर्ट कंटिन्यूड द डेथ सेंटेंसेस टू लाइफ इन 2014। और सुप्रीम कोर्ट ने उसने भी क्या किया है, जो डेथ सेंटेंसेस मिले था 2014 में,
तो उसको कंटिन्यू रखा। A resolution adopted by तमिल नाडु कैबिनेट इन 2018 फॉर रिलीजिंग देम। 2018 में एक रिजोल्यूशन लेकर के भी लाया गया, संशोधन बिल लेकर के आया गया कि इन लोगों को छोड़ दिया जाए। ये जो संशोधन हुआ था आर्टिकल 161 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, और जो कि जिसके ऊपर काम नहीं हुआ, वाज नॉट एक्टेड अपॉन का मतलब हुआ उस पर ऊपर काम नहीं हुआ। बाय देन गवर्नर, उस समय के जो गवर्नर थे उस लंबे समय पर तक उस पर एक्ट नहीं किए। यानी आपको पता है कि किसी भी राज्य में जो प्रधान होता है, कोई भी कानून तब वैलिड होगा जब गवर्नर उस पर सहमति जाहिर करेंगे। तो 2018 में तमिलनाडु कैबिनेट के द्वारा उन लोगों के लिए, यानी जो दोषी हैं उनको रिलीज करने के लिए 161वें आर्टिकल में संशोधन किया गया, लेकिन उस समय गवर्नर के द्वारा उस पर लंबे समय तक कोई विचार नहीं किया गया। अल्टीमेटली का मतलब हुआ आखिरकार, यानी अंततः क्या हुआ, ही फॉरवर्डेड इट टू द सेंटर फॉर इट्स ओपिनियन। इसको कहाँ फॉरवर्ड कर दिया, सेंटर के पास अपने ओपिनियन के लिए। द कोर्ट अर्लियर दिस ईयर फाउंड नो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर द गवर्नर्स एक्शन। और जो कोर्ट है वो इस साल ये पाया कि इसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक आधार नहीं है गवर्नर के एक्शन के लिए। एंड इवोक्ड extraordinary powers to order the release of AG प्रारवीलन, यानी एक व्यक्ति का नाम है। तो गवर्नर के जो एक्शन का कोई अधिकार नहीं बनता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या की कि इस व्यक्ति को अपना ताकत का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एजी पारारीवलन को छोड़ दिया। अब जब एजी पारारीवलन को छोड़ कर दिया गया तो सेम बेनिफिट हैज़ नाउ बीन एक्सटेंडेड टू अदर्स। तो एक को छोड़ोगे तो सारे बेनिफिट तो मांगेंगे ही, अब ये बेनिफिट सबको दे दिया गया। वाइल देयर रिलीज इज़ नो ओकेजन टू सेलिब्रेट, हालांकि उनकी जो रिलीज़ है वो ऐसा कोई ओकेज़न नहीं है कि जिसको सेलिब्रेट किया जाए। कॉन्ट्ररी टू वाट सेक्शंस ऑफ द मीडिया एंड द पॉलिटिकल क्लास सीम टू बिलीव, जस्ट उसके विपरीत कि कुछ ऐसे मीडिया हाउसेज हैं या फिर पॉलिटिकल क्लास हैं जो इस बात को मानते हैं, यानी ऐसा बिलीव करते हैं। यानी ये कोई सेलिब्रेट करने का विषय नहीं है। इट इज़ नॉट वन फॉर लेमेंटेशन इधर, और न ही इस पे शोक व्यक्त करने का विषय है। तो न ही खुशी मनाने का विषय है और न ही शोक व्यक्त करने का विषय है। लेमेंटेशन का मतलब हुआ, लेमेंट मतलब होता है शोक प्रकट करना। द प्लॉट्स मास्टरमाइंड्स आर डेड, जो इस प्लॉट मतलब होता है षड्यंत्र, तो कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र में जो लोग शामिल थे उनकी मौत हो चुकी, जो मास्टरमाइंड्स थे वो उनकी मौत हो गई है। एंड ओनली मिड लेवल ऑपरेटिव्स एंड लोकल कोलोबरेटर्स वर एप्रीहेंडेड, और केवल जो बीच में था उसमें शामिल वैसे लोगों को शक के आधार पे उसको रखा गया था। A sense that 31 years of imprisonment is punishment enough does indeed prevail, और एक सेंस की 31 साल की जो सज़ा होती है जेल में रहने की, एक लंबी सज़ा है, और ऐसा सच में प्रतीत होता है कि उनको छोड़ देना चाहिए। Their release is the culmination of the due process in a vibrant legal system that is not without its flaws। कह रहा है कि उनकी जो रिलीज़ है वो कल्मिनेशन है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड कल्मिनेशन। तो जो प्रोसेस था उसका हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है। हालांकि ये बिना कोई गलती का है ऐसा नहीं है, इसमें कई खामियां हैं। फ्लॉज का मतलब होता है कई खामियां। अ चिलिंग ट्रायल, चिलिंग मतलब जो ठंडे बस्ते में चला हुआ ट्रायल, आराम से सोच करके शांति से। वर्डिक्ट दैट सेंटेंस्ड ऑल 26 अवेलेबल एक्यूज टू डेथ इन 1998। उस समय क्या हुआ था कि 26 ऐसे अवेलेबल एक्यूज थे जिनको डेथ की सज़ा सुनाई गई थी 1998 में। डिड नॉट इम्प्रेस द सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ये लोकल अदालत के द्वारा थी, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट इस पर ज़्यादा इम्प्रेस्ड नहीं हुआ। बेस्ड ऑन अ काल्मर अप्रेजर, काल्मर का मतलब शांत तरीके से, तो शांत तरीके से मूल्यांकन करने के बाद, यानी शांत तरीके से किस चीज़ का, एविडेंस का। एविडेंस का मतलब साक्ष्य, तो साक्ष्य का सही तरीके से शांतिपूर्वक, अप्रेजल का मतलब हुआ यहाँ पे मूल्यांकन, मूल्यांकन करने के बाद इट्स 1999 जजमेंट एक्वेटेड 19 ऑफ देम। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने, 1999 के जजमेंट ने जो साक्ष्य थे उसके सही से मूल्यांकन करने के बाद 26 में से 19 लोगों को वहाँ पे
कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस से मुक्त कर दिया। एक्वेटेड का मतलब होता है छोड़ देना। एक्वेटेड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, वो भी आपको याद रखना है। यानी मुक्त कर दिया, बरी कर दिया 19 लोगों को। रिजल्टिंग इन देयर रिलीज, और जिसके कारण 19 लोगों की वहाँ पे रिलीज हो गई थी। 1999 की बात है। ऑफ द रिमेनिंग 7, बच गए थे 7। 4 वर सेंटेंस टू डेथ, 4 लोगों की मौत की सज़ा, यानी आजीवन कारावास नहीं, मौत की सज़ा। एंड देयर एंड 3 टू लाइफ, और 3 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिली, यानी पूरी ज़िंदगी कारागार में बिताने की सज़ा मिली। नलिनी recruited into the plot as the local chaperone to the potential suicide bombers। और जो नलिनी थी उसको पाया गया कि जो प्लॉट था षड्यंत्र में, वो लोकल क्या थी, चैपरोन मतलब एकम्पनी करने वाला, यानी जो सुसाइड बॉम्ब लेकर के गई थी उसका साथ देने वाली थी वो। गॉट द बेनिफिट ऑफ कम्यूटेशन इन 2000 itself, सो टू डीड रविचंद्रन, और ऐसे who had hoped to lead an armed separatist movement in Tamil Nadu with the Litte and help। तो 2000 में इन लोग नलिनी और रविचंद्रन को ये हुआ फ़ायदा मिला, जो कि अलग एक सेपरिस्ट, रविचंद्रन जो चाहता था कि एक अलग लिट्टे के हेल्प से एक संगठन बनाए। सेपरिस्ट का मतलब होता है अलगाववादी, अलगाववादी संगठन बनाने की सोच रहा था। द प्रिजन सिस्टम टू प्रूव इट्स बिनाइन साइड, मोस्ट ऑफ देम एक्वेटेड न्यू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो प्रिजन सिस्टम है वो भी एक सही तरीके, बिनाइन का मतलब होता है रियल, रियल प्रूव हुआ, जिसमें कई ऐसे लोग थे जो कि एक्वायर्ड न्यू एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जेल में रह कर के भी वो लोग अच्छा खासा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रहण कर लिए। वाइल वन कुड इवन इंडल्ज इन लिटरेरी परस्यूट, और उसमें से एक ऐसा है कि जो कि लिटरेरी यानी साहित्य के क्षेत्र में बढ़ गया। देयर फ्रीडम हैज़ कम अबाउट थ्रू लीगल प्रोसेस, उनकी जो फ्रीडम है यानी जो रिलीज़ है एक लीगल प्रोसेस से आई है। एंड लेजिटिमेट एडवोकेसी, और एक संवैधानिक सलाह से आई है। एट द सेम टाइम, इसी समय, इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन दैट द विक्टिम्स फैमिलीज हैव सफर्ड अ लॉट। साथ ही हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो विक्टिम थे उनकी फैमिली ने काफ़ी सहन किया, बर्दाश्त किया, सफ़र किया। विथ फ्यू ऑफरिंग देम शकर और सिंपैथी, उनमें से कई बहुत कम ही लोग होंगे जो उनको शकर, शकर का मतलब होता है सपोर्ट, और सिंपैथी का मतलब सद्भावना देते होंगे। द ट्रैजिक एपिसोड शुड ओकेजन अ फ्रेश इवोल्यूशन, और जो ट्रैजिक एपिसोड है वो एक मौका बनना चाहिए फ्रेश इवेल्युएशन का। इवेल्युएशन मतलब फिर से मूल्यांकन ऑफ रेमिशन सिस्टम, रेमिशन का मतलब होता है रिलीज़, यानी जो मुक्त करने वाली जो सिस्टम है उसका फिर से मूल्यांकन होना चाहिए। एंड नॉर्म्स फॉर प्री मैच्योर रिलीज ऑफ लाइव कॉन्विक्ट, एक नॉर्म्स बनना चाहिए, एक नियम बनना चाहिए कि प्री मैच्योर हम लोग रिलीज कैसे कर सकते हैं किसी भी कन्विक्ट को। गोइंग बैक द क्लियरिंग ओमिशन इन दिस पर्टिकुलर केस, सम इंडिकेशन ऑफ रिमोर्स ऑन द पार्ट ऑफ द कॉन्विक्ट शुड बी अ प्रायर रिक्वायरमेंट। अगर हम लोग इस मामले में चलें तो इसमें जो कुछ मामले, जो ग्लेयरिंग चीज़ है, जो सामने स्पष्ट नज़र आता है, उसको अगर ओमिट कर देते हैं, छोड़ भी देते हैं, तो कम से कम जिस लोगों को यहाँ पे रिलीज़ किया जा रहा है, जिन लोगों को, उनका जो पहला रिक्वायरमेंट ये होना चाहिए कि पहले में भी बताया आपको कि उनको इस बात को लेकर के पश्चाताप होना चाहिए कि उन्होंने गलत किया था और इसकी सज़ा उनको मिली है। तो इस तरह से जो प्रायर रिक्वायरमेंट है उन लोगों को रिलीज़ करने का, वो ये होना चाहिए कि उनको अपने गलती पे शर्मिंदा होना चाहिए और गिल्टी फील करना चाहिए। अगर ऐसा करता है तो उन्हें छोड़ना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल।